Hello everyone, today's topic is scalp. In this video, we will cover the remaining part of the scalp, that is the nerve supply, atrial supply, venous drainage and lymphatic drainage of scalp. First of all, we will revise rule of 5. Layers of scalp 5, nerve supply of scalp, total 10 nerves supply the scalp, but in front of the auricle 5 nerves, behind the auricle 5. Atrial supply of the scalp, 5 arteries supply whole scalp. Veins of scalp, total 5 veins drain the scalp except lymphatic drainage. 2 groups of lymph node present, that is preauricular and postauricular. Preauricular is superficial parotid group of the lymph node and posteriorly we have mastoid group of the lymph node. Now nerve supply of the scalp. Out of 10 nerves, 5 nerves in front of the auricle and 5 behind the auricle. In front of the auricle, 5 out of 5 nerves, 4 nerves are sensory and 1 is motor. Motor is a branch of facial nerve and sensory nerves are branches of trigeminal nerve. Supratrochlear and supraorbital nerves are branches of V1, that is the ophthalmic division of the trigeminal nerve. Zygomaticotemporal nerve is branch of V2 division, that is the maxillary division of the trigeminal nerve. Auriculotemporal nerve, that is a branch of mandibular division of the trigeminal nerve, V3. Behind the auricle again 5 nerves further divided in sensory and motor. 4 sensory, 1 motor. Motor same, that is the posterior branch is a branch of facial nerve. And sensory 4 nerves are branches of cervical plexus or these are the cervical nerves. Great auricular nerve, lesser occipital nerve, greater occipital nerve and third occipital nerve. These are the cervical nerves which supply the sensation behind, which take sensation from posterior part of the scalp. Root value, great auricular C2 C3, lesser occipital C2, greater occipital C2 and third occipital C3. अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि पहला C1 कोई सेंसरी सप्लाई नहीं देगी, कोई क्यूटेनियस सप्लाई नहीं देती है. C1 जो रूट सर्वाइकल नर्व होती है. उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं अप टू वर्टेक्स, ये जो है वर्टेक्स का पॉइंट है. वर्टेक्स तक कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती है, तो सुप्रा ऑर्बिटल और ग्रेटर ऑसिपिटल दोनों यहाँ वर्टेक्स तक सेंसरी सप्लाई देती हैं. वर्टेक्स है हाईएस्ट पॉइंट जो स्कल का है. जो नाम है नर्व्स के, आर्टरीज के, सबके वो उनकी लोकेशन के बेसिस पे. सुप्राट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल दोनों आई से रिलेटेड है. ट्रोक्लिया, सुप्राट्रोक्लियर, ट्रोक्लिया आई का जो ट्रोक्लिया है जहाँ से आई का जो ट्रोक्लिया जो पुली की तरह काम करता है उससे जा रहा है. सुप्रा ऑर्बिटल अगेन नाम ही इंडिकेट कर रहा है कहाँ से आ रहा है. जाइगोमैटिको टेम्पोरल उसकी पोजीशन के बेस पे, मतलब जाइगोमा और टेम्पोरल रीजन के बीच में से के आसपास उस नर्व की पोजीशन है. ऑरिकुलो टेम्पोरल ईयर और टेम्पोरल रीजन के पास में. नाउ ग्रेट ऑरिकुलर, ये सर्वाइकल इधर से आ रही है, ये यहाँ नेक में से होते हुए पीछे आती है, इसलिए इसका नाम हमने कर दिया ग्रेट ऑरिकुलर, लंबा रूट है. लेसर ऑसिपिटल, ग्रेट ऑसिपिटल, थर्ड ऑसिपिटल, ये तीनों ऑसिपिटल रीजन के अंदर है तो उसके बेसिस से इसका नाम है. जैसे हम मसल को देते हैं मेजर मसल एंड मेजर माइनर मसल्स होती है, वैसे ही लेसर ऑसिपिटल क्योंकि कम डिस्टेंस तक जा रही है. ग्रेटर ऑसिपिटल बोल दिया बिकॉज ये वर्टेक्स तक जा रही है. अब दो नाम हो गए, लेसर भी हो गया, ग्रेटर भी हो गया, तो थर्ड ऑसिपिटल एक और
जो तीसरी है उसका नाम हमने थर्ड ऑसिपिटल कर दिया। सेम एट्रियल सप्लाई ऑफ द स्कैल्प, वही सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, ये दोनों आर्टरी जो है वो ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेज है, और ऑप्थेल्मिक आर्टरी इन टर्न इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। नाउ superficial temporal artery, posterior auricular artery and occipital artery is a branch of external carotid artery. 3 arteries supply in front of the ear and 2 behind the auricle. क्वेश्चन आता है इधर वाइवा में पूछते हैं, scalp is the site of free anastomosis between the branches of internal and external carotid arteries. जैसे ये यहाँ एनास्टमोस हो रही है, ये डायग्राम है, इसमें हम देख लेंगे, नाम देख सकते हैं हम, सुप्राट्रोक्लियर नर्व, सुप्राट्रोक्लियर नर्व, सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व, उसकी लोकेशन के बेसिस पे है ना। अभी temporal branch of the facial nerve, auriculotemporal nerve, great auricular nerve, posterior auricular nerve, lesser occipital, greater occipital and third occipital. जब हम डिसेक्शन करेंगे, जब हम देखते हैं तो हमें कुछ कुछ नर्व्स दिखती हैं स्कैल्प डिसेक्शन में। Now venous drainage of the scalp. 5 veins drain whole scalp. सुप्राट्रोक्लियर वेन, सेम जैसे आर्टरी का नाम था सेम वैसे ही वेन का नाम है, सुप्राट्रोक्लियर वेन, सुप्राऑर्बिटल वेन, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, ऑसिपिटल वेन। अभी सेम वीनस ड्रेनेज जो हम फेस में भी पढ़ेंगे। अब जो वेन्स ऑफ स्कैल्प अकम्पनी कर रही है आर्टरीज को, सुप्राट्रोक्लियर एंड सुप्राऑर्बिटल will form angular vein. सुप्राट्रोक्लियर, सुप्राऑर्बिटल, इन दोनों ने मिलके यहाँ पे बनाई एंगुलर वेन। एंगुलर वेन कंटिन्यूज डाउन एज फेशियल वेन, ये फेशियल वेन है। नाउ सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन join with the maxillary vein, superficial temporal vein join with the maxillary vein and these form retromandibular vein। ये दोनों मिलके बनाएंगी यहाँ पे retromandibular vein, और retromandibular vein फर्दर डिवाइड हो जाएगी 2 डिविजन्स के अंदर, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन के साथ ज्वाइन होगी फेशियल वेन और फॉर्म करेगी कॉमन फेशियल वेन, जो ड्रेन करेगी इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। और जो पोस्टीरियर डिवीजन है, पोस्टीरियर डिवीजन जॉइन विद द पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ये जो वेन आ रही है ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन है, और ये जॉइन कर रही है इसके साथ में पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन, और ये दोनों मिलके बना रही है एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और ये फाइनली ड्रेन करती हैं सब क्लेवियन वेन के अंदर, ये ड्रेन करेगी इसके अंदर। ये सेम वीनस ड्रेनेज हम फेस के अंदर भी पढ़ेंगे, एक ही डायग्राम 2 जगह याद करना है। वीनस ड्रेनेज ऑफ स्कैल्प में हमें 2 चीज़ें और याद रखनी है जो पूछ सकते हैं। 2 सेट्स ऑफ एमिसरी वेन्स भी हैं यहाँ पे हमारे पास, पैराइटल एंड मेस्टॉइड, एंड डिप्लॉइक वेन भी हैं, फ्रंटल एंड ऑसिपिटल। Now lymphatic drainage of the scalp. Lymphatic drainage of the scalp, एंटीरियर जो पोर्शन दिख रहा है हमें, ये वाला एंटीरियर पार्ट, ये ड्रेन करेगा सारा का सारा पैरोटिड, सुपरफिशियल पैरोटिड ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स के, सुपरफिशियल पैरोटिड लिम्फ नोड्स के अंदर, और इसको हम कहते हैं प्री ऑरिकुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड, प्री ऑरिकुलर ग्रुप। एंड जो पोस्टीरियर पार्ट है ये ड्रेन करेगा, ये जो पोर्शन है पोस्टीरियर ये ड्रेन कर रहा है रेट्रो ऑरिकुलर या मेस्टॉइड ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स के अंदर। तो ये प्री ऑरिकुलर है,
एक पोस्ट ऑरिकुलर ग्रुप, ऑरिकल के आगे और ऑरिकल के पीछे, उससे याद करना है। तो प्री ऑरिकल पैरोटिड मीन्स अराउंड द ईयर। तो पैरोटिड जो है मैक्सिमम जो उसका सुपरफिशियल जो पार्ट है वो इसके आगे है ईयर के। तो ये आ गई हमारे एंड, उसका नाम इसके ऊपर आ गया। तो ये जो प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स हैं वो कौन, उसको और क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल ग्रुप, सुपरफिशियल पैरोटिड लिम्फ नोड्स। और जो पोस्ट ऑरिकुलर है ये मेस्टोइड रीजन में आ जाता है, तो इसका दूसरा नाम हो गया मेस्टोइड lymph nodes. Thank you.